کے آگے تو تمہارے سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کے آگے تو تم سے بولا نہیں جا رہا تھا. کس کے وہاں آگے؟ تو سمیر صاحب کری جا رہے تھے، سمیر صاحب مجھے بچا وہ لو. میرا مسلمان بھائی ہے نا، وہ بتاتا ہے میں اسماعیلی شیعہ ہوں. تو جو میرا مسلمان بھائی ہے، میں ضیاء رسول سے بھی ڈرتا ہوں، وہ میں تمہارا ابوبکر سے بھی مسلمان ڈرتا ہوں، بھائی میں ہے، علی سے بھی ڈرتا ہوں، وہ میں تمہارا سارے مسلمانوں سے مسلمان بھائی ہے، تمہارا مسلمان بھائی ہے سمیر. سارے سمیر شیعہ سنی سب میرے مسلمان بھائی ہیں. تمہارے مسلمان بھائی ہیں. اچھا تو پھر ہاں، تم لوگوں مسلمان کے بھائی ہیں. عقیدے کیوں نہیں ملتے اگر تم بھائی ہو تو؟ تو اس کی تمہیں کیوں فکر ہے؟ ہاں تو تم کیسے نہیں مسلمان ملتے ہو تو جن کے ایک عقیدہ دوسرے سے ملتا ہی نہیں اگر ہے؟ کوئی نہیں ملتا، اگر کوئی عقیدہ نہ ملتا ہوگا کوئی تو عقیدہ نہیں، مرزائی کو سارے عقیدے میرے تمہارے عقیدے نہیں کی کیا ملتے، فکر ہے؟ اور تمہارے بھائی سارے بات تو عقیدے سنو نہیں نا ملتے. تم جن کو بھائی، خلیفہ نہیں مانتے ملتے ہو تو وہ ان نہ کو ملے، خلیفہ تمہیں بل مانتے ہی آتا نہیں. ہے ہیں؟ اور تمہیں بل دینا پڑ رہا ہے. بل دینا کیا پڑ رہا ہے؟ تمہیں کیا تمہارا پرابلم اسلام ہے؟ سچا ہے نا، تمہارا تمہیں کیا اسلام سچا تکلیف ہے تو ہے؟ ایک میرا جیسا ہونا عقیدہ چاہیے. کسی سے ملتا ہے نہیں ملتا، اور بھائی میں تمہارا کسی کو اپنا اسلام اگر بھائی مانتا سچا ہوں نہیں ہے تو مانتا، ایک جیسا ہونا تمہیں کیا چاہیے نا. تکلیف ہے اس کی؟ اور تمہارا میں اسلام مرزائیوں اگر کو کافر سچا ہے تو سمجھتا ہوں، ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ مرزائیوں کو میں مخرج من الملہ سمجھتا ہوں، تو باقیوں کو شیعوں سب کو میں تم کیا مسلمان سمجھتا سمجھتے ہوں، ہو اور وابیوں شیعوں کو کو تم کیا مسلمان سمجھتا سمجھتے ہوں، ہو؟ وابیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، شیعوں تو ان کے وابیوں کو خلیفے مسلمان تو سمجھتا ہوں. فرق ہیں تمہارے سے. تم تو ابھی خلیفہ کر رہے ہو، شیعوں کے تو خلیفے جو فرق ہے، مرضی تمہارے ہو، خلیفے فرق. یار میری بات سنو نا، میں ہاں ان کو اس کے باوجود اختلاف کے ان کو اپنا بھائی مانتا ہوں نا. کیسے؟ تمہیں کس تمہیں نے کیا یہ تکلیف اختیار ہے؟ دے دیا ہے کہ جس کو تمہیں مرضی کیا بھائی بنا تکلیف لو اور ہے؟ جس کو اور مرضی تمہیں کیا کافر بنا تکلیف دو؟ تو میرا حق ہے نا یار، یہ کیسے پاگل ہے یار. تو تمہیں تم میں اگر پاگل ہو نہیں کہ ہم مانتا اپنا پاگل ہیں جو بھائی گالیاں تو دیے تم نے جا رہے ہو؟ زبردستی، اور میری بات سنو واٹر، اور تمہارے تو تم نے خلیفے ہی نہیں زبردستی میرا ملتے. بھائی نبی بننا تو ہے. بعد کی بات ہے، اور اور بات نبی تو سنو بعد نا، کی بات ہے، خلیفے ہی نہیں اور تمہارے سن تو ملتے. لو، اور سن اور تو لو تم نا. کیسے مسلمان ہو جن کی میں دو اگر آنکھیں نہیں ملتی ہیں سمیر کو آپس بھائی میں؟ کہتا ہوں، کسی بریلوی کو بھائی کہتا ہوں، اور مرزائی تم تو کو اگر نہیں عیسائیوں اور کہتا سکھوں کو تو بھی میرا بھائی رائٹ ہے کہتے نا. ہو، اور تو یار میرا سکھوں کو بھی رائٹ ہے نا. بھائی کہتا ہے. ہاں، سکھوں کو کہہ لوں گا، ہاں ہندوؤں کو کہہ لوں گا، کرسچنوں کو کہہ لوں گا، مرزائیوں کو نہیں کہوں گا. ہاں تو کیونکہ تیرا مرزائی کون سا اسلام بدترین ہے قوم ہے بھائی؟ یہ اللہ کی کون اس سا دھرتی قرآن پر. شریف تو پڑھتا ہے؟ کون سے والا قرآن سب سے شریف گندی پڑھتا ہے؟ قوم ہے، اور تو سب سے قرآن گندی شریف قوم کون سا ہے. پڑھتا ہے جس میں ایسی باتیں لکھی ہمارے ہوئی ہیں؟ محبوب نبی کو گالیاں دینے والے، ان کے گھر پر ان کی اہلیہ کو گالیاں دینے والے، ان کے اچھا صحابہ کو گالیاں دینے والے، تو اہل صحابہ کو بیت کو گالیاں گالیاں دینے والے والے، تو تیرا ان بھائی ہے. دیوسوں کو میں کبھی اپنا بھائی نہیں اور مانوں گا. تمہارے ان خلیفوں کو مرزائیوں کو گالیاں میں دینے والے شیعہ کافر تو مانوں تمہارے گا. بھائی ہیں. تمہارے شیعہ نبی کو بھائی ہیں، وہابی گالیاں بھائی دینے ہیں، والے دیوبندی سکھ بھائی عیسائی تو ہیں، تمہارے بھائی ہیں. بریلوی بھائی ہیں، مرزائی لانتی ہیں. ہاں مرزائی لانتی ہیں، باقی سارے بھائی نے وہ بھی تینوں گالاں ہی کٹ دینے، باقی بے سب فکر بھائی ہے. ہیں، مرزائی لانتی ہیں. اور تیرے خلیفوں مرزائیوں کو میں وہ بھی لانتی گالیاں مانتا ہوں. دیتے ہیں. اور بھائی دونوں یار بالکل دے فرق گا، میں اسلام ہے. جانوں وہ جانے. اور میں مرزائیوں کو لانتی مانتا ہوں، مرزائیوں کو. اچھا تو اس کی دلیل تم کیا ہے میرا تمہارے پاس؟ زبردستی میرا بھائی بننا چاہتے ہو، جب میں نہیں میں میری تیرا بات بھائی سنو نا. کیوں بنوں بھائی؟ تو ہے تو ہی نہیں اتنا بننا گندا. چاہتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہاں پھر تو کیوں لڑ ہے رہے ہی ہو اس اتنا وقت گندا سے؟ بھائی، تو خود مسلمان جب میں نہیں ہے. لعنت بھیجتا ہوں تم مرزائیوں اور پر، بھائی تو تو تم مسلمان میرا ہے ہی زبردستی نہیں، تو بھائی تو بننا لعنت چاہتا ہے. بھیج دیا جو مرضی بھیج، ہمیں کیا؟ تو تو پیچھے آپ رہو، مجھ سے مسلمان دور نہیں رہو. ہے. میں تو آپ شیعہ کو مسلمان بھائی نہیں، مانوں، گالیاں میں کیوں دیتا بریلوی ہے کو تو مجھے مانوں، یہ بتا. دیوبندی کو مانوں. ہاں مرزائیوں کا کم از کم میرے دین سے کوئی لینا دینا، میری امت سے، میرے تیرا نبی کی امت دین سے کوئی کون سا لینا ہے دینا بھائی؟ نہیں. کون سا دین ہے تیرا؟ میرا دین اسلام. کون سا اسلام؟ شیعوں والا اسلام کہ سنیوں والا اسلام؟ ہاں، مرزا قادیانی دجال والا. مرزا کون سا قادیانی اسلام ہے بھائی دجال والا تیرا؟ اسلام. بھائی تیرا جھوٹے اسلام مدعی کون سا ہے؟ نبوت والا اسلام. آپس میں ہی جھوٹے اپنے مدعی صحابیوں نبوت کو والا گالیاں دے اسلام. کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بھائی ہیں. جو تمہارے میں نبی کہہ کو رہا ہوں کہ گالیاں دیتے ہیں وہ بھی مرزا تمہارے قادیانی بھائی نے ہیں. سب سے زیادہ گالی باز جو گالیاں دیتا ہے اہل بیت کو، مر گیا وہ مرزا قادیانی تھا. اور بھائی قرآن دیکھو شریف امام میں خود حسین کے لکھا بارے ہوا ہے میں یہود کہتا و ہے نصارہ تمہارے دوست کہ نہیں ہو امام سکتے، تو حسین ان کو کا بھائی ذکر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈیر ہے. بھائی جو قرآن ایسے شریف میں بھونک خود بھونک کر لکھا مرا ہوا ہے ہے اہل یہود و بیت پر، نصارہ تمہارے اس دوست کو نہیں میں ہو نہیں سکتے، تو مانتا ان کو اپنا بھی بھائی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو میں غدار ہے. لعنتی مانتا ہوں. اور یہ تو میرا غدار رائٹ ہے ہے نا، بھائی. میں ایسوں پہ لعنت ڈالوں. تو ہر کسی پہ لعنت ڈالتا ہے، پھر میری بھائی بنا مرضی لیتا ہے، ہے. پھر لعنت ڈالتا ہے، تم بھی پھر بھائی بنا لیتا ہے. یار میری بات سنو نا. تم ہاں اہل بیت کو یوں گالیاں دینا چاہتے ہو تو تم مجھے اپنا بھائی نہ بناؤ. میں کب کہہ رہا ہوں مجھے بھائی بناؤ؟ تم اہل میں بیت کو لعنت بھیجتا ہوں گالیاں نہیں تمہارے دیتے؟ تم مرزائیوں اہل پر. بیت کو گالیاں نہیں دیتے؟ جو اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے وہ حرامی ہے، وہ تو اپنی یعنی کہ حلال تمہارے زادہ سارے ماں کا امام بیٹا ہی سنی نہیں ہے. امام حرامی ہیں؟ وہ حرام زادہ اور ہے جو تمہارے اہل سارے بیت کو سنی گالی امام دیتا ہے. حرامی ہیں؟ وہ تو گالیاں دیتے ہیں اہل مرزا بیت کو. قادیانی حرام زادہ، اور مرزا یار قادیانی تمہارے دجال کا امام بچہ، بھی تو لعنتی حرامی ہوئے نا، خنزیر، وہ تو اہل بیت کو وہ گالیاں خنزیر دیتی ہے. لعنتی دیوس. مرزا قادیانی دجال کا بچہ لعنتی. اچھا تو یہ جو ٹھیک ہے، تمہارا امام احمد جو رضا تھا حرامی جو تھا، شیعوں کو اس گالیاں کا دیتا تھا. بیٹا بھی حرامی تھا جو کہتا تھا کہ
کہ میرا باپ جو ہے رنگین مزاج ہے، وہ رنگین مزاج حرامی تھا، اچھا اچھا اچھا، جو لعنتی اہل بیت پر بھونک بھونک کر کتے کی طرح مرا ہے. تو تم تو ابھی خود اہل بیت پہ بھونک رہے تھے، بلکہ سب سے بڑے اہل بیت حضرت علی پر بھونک رہے تھے ابھی. میں بتاتا ہوں، جو اہل بیت پر بھونکتا ہے
वो अपनी बहन की टांगों में सर फंसाकर पैदा होने वाला लानती है। यानी कि तुम अभी हज़रत अली जो को भी गालियां अपनी दे रहे बहन थे। की टांगों में सर फंसाकर अपनी माँ की शर्मगाह से निकला है, वो अहले बैत पर भौंकता है। तू अपनी माँ की शर्मगाह से नहीं निकला, तू कहाँ से निकला? पता कर लो, तू पता अंडे ही तो कर लो, निकले जो हैं। अपनी बहन की टांगों में सर फंसा के अपनी माँ की शर्मगाह से निकला है। अभी तो तुम वो यार अरबी अहले दयूस, बैत को गालियां दे अहले रहे बैत पर थे। भौंकने अच्छा वाला मेरी कुत्ता बात था। सुनो, अच्छा बात सुनो, मैं गालियां किसी का वालियां नाम ना ले रहा दिया हूं? करो, तुम कोई मैं आलम किसी का शलम नाम नहीं ले रहा, वो मैं नाम नहीं ले रहा, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। नज़ीर भाई इस तरह की बातें इधर नहीं करती है। यार ये नॉनसेंस बकवास करता जा रहा है। मैं यार इसको तुम मुखातिब आलम नहीं कर कहाँ रहा। से हो जो गालियां देते हो? मैं इसको मूल गाया मैंने, ये ठेकेदार गंदी आ गया गालियां है। देता है ये बंदा, तो मैंने तो गंदी सिर्फ ये गालियां मैं एतराज देता हूं। किया कि भाई बात करो, मैं गालियां ना गंदी दो। गालियां देता हूँ। हाँ। मिर्जाई हमारे नबी को गालियां दें, नबी के घराने को गालियां दें। कल समीर साहब, मैंने आपको कहा था आपके टाइम के मुताबिक 9:30 के बाद बराड खोल के देखना, रिकॉर्डिंग खोल के देखी है। मारिया किप्तिया का नाम लेकर वो कुत्ता भाई हम भौंक कर तो गया किसी था। नबी को गाली नहीं वो देते, मिर्जाई जो कुत्ती का हमारे बच्चा नबी को भौंक कर गाली गया था, दे देखा वो आपने? अपने नबी को गाली दे। हम तो किसी को गाली नहीं देते। ठीक है, लेकिन वो जिसको इतना शौक बंदा है यहाँ पर वो अपने नबी को गाली गालियां दे। दे। हम इनके हम तो लिए नहीं कौन देते सा भाई मोहब्बत किसी का नबी यार को एहतराम का कोई रखते हैं जज्बा? हाँ जी, हाँ जी, हम किसी को गाली शर्म नहीं आती है? तुम ईसाइयों और सिखों से गालियां खाओ जाके, जो तुम्हारे नबी को चलो कुछ जी, समझते ही नहीं। मैं जिससे मर्जी जाके खाऊं। हाँ, मर्जी तुम्हारी कहाँ हो गई भाई? दीन तूने बनाया हुआ, तू कोई रसूलुल्लाह बन मेरा गया। दिन ओ भाई, तू मेरा दिन रसूलुल्लाह मेरे साथ, बन तेरा गया, दिन जो खुद तेरे जाके साथ। फैसले कर रहा है दीन के मुतालिक। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा दिन तेरे नाल, मेरा दिन और मेरे भाई नाल। 4 आयतें याद करनी है तो मतलब भी याद कर लो और तशरीह भी पढ़ लो उनकी। अब आता बताया जाता तो है तुम्हें ना, कुछ है नहीं। मिर्जा कादियानी का दिन, मिर्जा मिर्जा कादियानी के दिन कादियानी के साथ, कौन है? मिर्जा आमर का कादियानी दिन आमर कौन के साथ। कौन है? लेकिन मिर्जा ये एक कादियानी? दिन में नहीं है, ये और हम तुम्हें दोनों नाम एक तक दिन में तो नहीं आता है। नहीं किसी चीज का, तो होशियार तुम इतने बने फिरते हो। पता नहीं अच्छा क्या चलो जी, ठीक इंसान हो है यार तुम। चलो ठीक है, रंगीन चलो मिजाज ठीक का है, क्या दिन, ठीक है। रंगीन मिजाज के साथ और क्या मेरे ठीक है, जैसे रंगीन भले मिजाज शरीफ है। आदमी का बाकी दिन। लोगों ने शादियां नहीं की हुई, तुम रंगीन मिजाज हो, तुमने शादी जो की हुई है। यार मैंने किसी का नाम लिया यार, वाकई। हाँ, नहीं तुम नाम तो ले वैसे- किस लिए? तुम चलाकियां खेल किसके लिए रहे हो? अपनी गालियां छुपाने के लिए? कौन है रंगीन मिजाज? किसको मैं कह रहा हूँ रंगीन मिजाज? पता नहीं किसको कह रहे हो। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि जो क्यों जनरल दिन बात कर रहे हो? मेरा है, हमने तुमसे मेरे रंगीन साथ। मिजाजी का रंगीन मिजाज पूछा? का दिन, रंगीन मिजाज के और साथ। भाई हमने तुमसे पूछा रंगीन मिजाजी का, तुमको किसके मुतालिक बात कर रहे हो? मैं तो यार जनरल का लकुम दीन हुकुम वालिया दिन का मतलब बता रहा हूँ। यार तुम्हारा जब दिन तुम्हें तुम्हारे पता ही साथ। नहीं, कहीं जनरल बातें मेरा दिन करने के मेरे लिए साथ। नहीं होती ब्रॉड पे, स्पेसिफिक बातें किया रंगीन करो। मिजाज का दिन, रंगीन मिजाज के साथ शरीफ मिजाज का शरीफ गालियां तो मिजाज तुम के बड़ी स्पेसिफिक देते हो, फलाना ये फलाना साथ। वो कोई गाली फलाना नहीं ये। देता यार, कोई गाली नहीं देता। हाँ, गालियां गाली नहीं गुलियां ना देता दिया मैं, करो। सिर्फ उनकी गालियां मेरी बात। हाँ, मैं उनकी तुम तो गालियां वो उनके मुंह पे लोगो- लुटा। अच्छा बात सुनो, तुम वो इन्नमा- लोगो अच्छा एक इन्नमा मिनट ठहरा, नरुद्दु- मुझे भी बात करने इन्नमा दे। नरुद्दु अब टांटा ना कर, एक सब्बसाबीना मिनट अला चुप कर वजूह। जरा, चुप कर एक मिनट। तुम वो लोग हो जिन्होंने अपना दीन पकड़ के ना क्रिश्चियनों को दे दिया। वाटर साहब जी ऐसे तो तुमने तीनों शरीयतें, तुमने अल्लाह का कुर्ब, यार मैं तुमने जानू, मेरा हमेशगी तुम्हें मेरे सारी दिन की हज़रत क्या ईसा को फिक्र दे है? दी है। तुम्हारा अपना दिन है, मेरा अपना दिन है यार। और वाकई तुमने इसमें तो तुम्हारा अपना मेरे दीन साथ कुछ झगड़ा है। तुमने तो अपने नबी का दीन क्रिश्चियनों को पकड़ा दिया चलो है। जिसको मर्जी मैं दे आऊं, जिससे मर्जी ले आऊं, तुम तुम्हारी इससे क्या तुम तो दर्द है वो ही आपको? नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के तुम्हारा मुसलमान, दीन मुझसे लदा है ना, तुम और अपना तुम सवाल तो करो। ईसाइयों के एजेंट हो। तुमने तो हजरत ईसा को चलो। आसमान पे बिठा दिया। चलो तुम तो जी, मैं ईसाइयों अगर के इस तरह एजेंट हो। इसको जवाब दूंगा फिर ये चीखेगा, कहेगा गाली क्या देता है। देख चीखेगा? लो समीर और साहब। क्या चीखेगा? सच यही है, तुम लोग हजरत ईसा यार, को आसमान तुम्हारा पे दिन जिंदा तुम्हारे मानते हो साथ है यार। और रसूल अल्लाह को मुर्दा और मानते यार हो। तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ है, मेरा दिन मेरे साथ है, और मिर्जाई तुम का लोगों दिन ने मिर्जाई दीन के बदल साथ दिया, है, फिरके मुसलमान कर का दिन दिया। मुसलमान के साथ। हजरत ईसा के पास दीन बिल्कुल सही पड़ा हुआ है आसमान अब पे। मिर्जाइयां साहब के रखे है, मिर्जाइयां ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨੋਂ ਦਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨਬੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਹੈ। ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦੀਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਸਬੂਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਪਕੜ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਸ। ਈਸਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਫੈਲਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਓਏ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। कोई मैं केड़ी गाल गल नहीं रह करता, गई मैं तो कहना रंगीन मिजाज का दिन, रंगीन मिजाज के साथ शरीफ मिजाज का दिन, शरीफ मिजाज। कौन सा शरीफ मिजाज है भाई? तुम शरीफ मिजाज आदमी हो, इतनी गंदी गालियां देते हो तुम। कौन सी गाली दी है मैंने? और दियूस कौन लगा हुआ है उस वक्त का? और दयूस किसी का नाम लेके कहा है, वो दयूस हैं जो अहले बैत पर भौंकते हैं। तो भाई शरीफ लोगों की महफिल में गालियां नहीं दी जाती। ओ यार ये गाली है, ये जो अहले गाली बैत नहीं को है गाली तो दे। फिर अपना नाम रख जो लो अहले- दियूस। अगर ये गाली नहीं है तो ओ अपना भाई नाम सुन लो, दियूस सुन रख लो। लो। समीर
अपना जी, नाम बताओ, रख जो लो, अहले अपने बैत बेटे पर का नाम भौंकता है रख वो लो, कौन है? सारे अपना नाम चलो दियूस समीर रख से लो, पूछ कोई लेते गाली नहीं है। मैं, चलो मेरी बात सुनो ना, जो समीर साहब जो हाँ। मौला अली पर भौंके, जो मौला हुसैन पर भौंके, वो कौन है? वो जो तो भी तुम भौंक रहे थे हजरत अली पे, सुनो तुम तो कह रहे थे सुनो कि तो हजरत सुनो। अली औरतों के कपड़े उतारते उनको थे। गालियां देने वाला कौन है? वो आमर नजीर है, तुम दे रहे थे गालियां। कहना बेचारे ने बस हो देखिए गई। देखो और तेरे पास कुछ नहीं है, बंदा बन के रह, अपना दीन पता नहीं है, लोगों को तनकीद करने चला हुआ। मैं बंदा बन के नहीं रहना, तुसी इंज हजरत करो, ईसा को मेरी जनाब साहब सुपारी दे इस्लाम दो। पकड़ाई बैठे हैं ये चंदा ये पा लोग के हैं। ना, चंदा इस्लाम करके मेरी सुपारी दे रसूल दो। अल्लाह का इस्लाम सारा हजरत ईसा को ਤੁਸੀਂ पकड़ा दिया, टिकटॉक छੱਡ के ईसाई नबी को। छੱਡ के मरजाइयत दी पे वो तबलीग नबी जाके रहता है, हिंदुओं को करो, आसमान सिखां से को करो। आके इस्लाम उसने फैलाना है, कुरान उसने आसमान पे पढ़ा है रसूल अल्लाह के बगैर, हाँ। मुसलमान वो है रसूल अल्लाह के बगैर। लो जी, अपना सारा इस्लाम ही पकड़ा दिया ईसाइयत को। चलो भाई ज़या भाई, मैं जरा बिजी हूँ, 5 मिनट वाबिया ने बात करें पैसे आप। फड़ के सारा इस्लाम पकड़ा दिया। इसके बेचारे की हालत गैर हो गई है, इस पे और रहम तेरी भाई हालत गैर हो गई है, अब जाके ना पानी छानी पी, झूठ मारता ठीक रहता है, है। कभी शिया बन जाता है, कभी वाबी बन जाता है, कभी बरेलवी बन जाएगा, कभी सुन्नी बन जाएगा। फिर पता चल जाता है कि बंदा हार गया है। छी गाना तो तेरा बॉस कटन ते आ गया ते हार हो गया। तेरा नहीं, हाँ। समीर भाई ये तेरा इनकी काल उठा लेंगे। वो अगला गाला समीर भाई कट ये रहा है। रेड डीपी है ट्रू मुस्लिम, इनकी काल उठा लेंगे, कोई सवाल करना चाहता है? हाँ, पता नहीं यार की बंदा रखा है। चलो समीर साहब इसको कहो बस गालियां ना दिया करे, बात करनी है तो बात करे। गाली गाली मत दे, गाली अलाउड नहीं है इस ब्रॉड पर, ठीक है? थैंक यू जो सर, एक थैंक सवाल यू। पूछना है, मुझे भी मौका दिया जाए। अभी ये इधर जो दयूस हो रही थी, वो चले गए हैं, समीर क्या नाम है, वाटर साहब, चले गए। यार उन्हीं से सवाल पूछना था, वो किताब से पूछना था। मैंने सवाल जो पूछता हूँ वो मैं मिर्ज़ा साहब की किताब से हबारत हूँ वो वही पढ़ता हूँ, या कुरान और हदीस से, चौथी तो कोई बात ही नहीं करता। तो समीर साहब आप बताएं, फिर इसमें कोई गाली की गुंजाइश रह जाती है? कोई कह सकता है कि इस शख्स ने मुझे गाली दी है? अगर मैं मिर्ज़ा साहब की किताब से कुछ अल्फाज पढ़ता हूँ, कुछ जुमले पढ़ता हूँ, कुछ अबारत पढ़ता हूँ, ठीक है, अब उनमें से कोई नहीं है इधर तो इसलिए आप मैं सवाल नहीं करता ना। अगर वो होते तो उनसे मैं जरूर सवाल हवाले के साथ पढ़ते हैं फिर तो ठीक है ना। अगर और नहीं, मैं हवाला भी महमूद नहीं साहब अगर हवाले के साथ Word to पढ़ेंगे तो word फिर कोई copy गाली करता नहीं, अभी तो हवाला पढ़ रहे हैं ना, फिर हम आपकी बात से एग्री करेंगे। तो वो जो वाटर साहब कहते हैं आप गाली दे रहे हो, तो भाई मैं हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम दे रहा हूँ, सफ़ा नंबर दे रहा हूँ, तो फिर बता रहा हूँ कि ये मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। वो कहते हैं ये गाली दे रहे हो। नहीं, जो भी है देखो, बात क्या है कि ये असल बात क्या है कि खत्म नबूवत और वफात ये ना समीर भाई, अगर मिर्जा साहब ने जो लिखा है, अगर ये बोलते हैं तो मिर्जा साहब की जो बात है ये बता देते हैं ना मिर्जा साहब की। देखिए, देखो यहाँ तो देखो, मुझे एक सवाल का जवाब देते जाए, सिंपल सा सवाल है मेरा, लंबा चौड़ा नहीं होता, बस एक दो जुमलों पे होता है सारा। नहीं देखिए बात क्या है, असल ठीक है, आप बात करें, मैं इनका जवाब दूंगा अपना। समीर भाई ठहरिए, मिर्जा साहब का जो ये जवाब देंगे ना मैं दे दूंगा, सवाल करेंगे मिर्जा साहब का। अच्छा, ये अभी इधर दयूस हो रही थी, तो दयूस का मतलब तो आप में से अक्सर लोगों को पता ही होगा, मैं वो बताना नहीं चाहता। तो मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी बीवी के मेरे मरीदों के साथ नाजायज़ संबंध थे। मिर्ज़ा साहब को पता है। नहीं और नहीं, वो देखो बात क्या है कि अभी उनमें से तो इधर कोई नहीं है ना, तो वो कह रहे इधर किसी ने कहा ना मैं जवाब दूंगा, ये ऊपर का यानी अगर हम इनसे खत्म नबूवत के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। अगर खत्म नबूवत देखो, अगर उन्होंने उनको अगर एक बार मान ली तो मिर्जा साहब की किताबों पर जाना ही नहीं होगा ना, तो उसका मिर्ज़ा साहब की किताबों पे नहीं जाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि मिर्ज़ा साहब के क्या दावे हैं, मिर्ज़ा साहब क्या करते रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो अपने आप को क्या मनवाते रहे हैं। देखो वो तो ठीक कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अब पहले खत्म नबूवत को साबित करो, फिर मिर्जा साहब मीर भाई अगर मौला अली की अगर फजीलत देखनी है तो फिर मौला अली का बयान तो उनकी वो देखेंगे ना, चीजें देखेंगे ना कि मौला अली की सुन्नत क्या है। अब कोई बोले हमसे बंदा कि मौला अली ने ये फरमाया तो क्या हम भाग जाएंगे? हम तो नहीं भागेंगे। ये क्यों भागते हैं? ठीक है, ठीक है जी। नॉलेज कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें सुमित भाई, बात ये है कि जो शख्स ये कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की सुन्नत थी और की कपड़े उतारने, ठीक है ना,
وہ کیسے کسی کو کچھ پوچھ سکتا ہے؟ اس کا کوئی حق ہے پہلی چیز. اور دوسری چیز انہوں نے بولنا ہے آئیں ختم نبوت پر. سمیر صاحب دیکھیں ٹھہر جائیں ٹھہر یار ہولڈ کر. اگر ختم نبوت پر بات کرنی ہے، حیات عیسیٰ پر بات کرنی ہے قرآن سے، نو پرابلم، میں بیٹھا ہوں ادھر، نو پرابلم. انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں میں جانا ہے، لیکن انہوں نے تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے یار. تو اگر قرآن سے ان دو ٹاپک پہ بات کرنی ہے میں کر لیتا ہوں. ہم یہ بولیں گے سمیر بھائی تو پھر ہم نے لعنت اللہ کاذبین اپنا بھی اظہار کرنا ہے سمیر بھائی. آپ جو مرضی کر لو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو کرتے ہو آپ نے اپنی قبر میں لے کے جانا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرسچنز بھی اصل کرتے ہیں بات ایسے. ہے میں ان کو جانتا ہوں، یہ جماعت احمدیہ کے مربی صاحب ہے، یہ آئے ہیں قرآن و حدیث سے بات کرنے کے نہیں لیے. میں کوئی مربی نہیں ہوں، میں اپنا بزنس چلاتا ہوں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں اپنی فیکٹری میں ہوں، میں کوئی مربی شربی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ اگر بات ہونا چاہیے تو صرف وفات عیسیٰ علیہ السلام اور ختم نبوت کے بارے میں. دیکھیں سمیر صاحب، پوری دنیا میں یہ ڈنکا بچاتے ہیں ختم نبوت، پیسہ اکٹھے کرتے ہیں بچہ، پر جب ہم کہتے ہیں آجو بات کر لو قرآن سے دلیل دے دو، کہتے ہیں نہیں ہم مرزا صاحب کی کتاب ہے، مرزا صاحب کی کتاب ہے. یہ تو دنیا کو انہوں نے ڈرامہ فراڈ کیا ہوا ہے نا. بھائی آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. قرآن کا معنی مفہوم آپ نے بدل کے رکھا ہوا ہے. آپ سے کیا بات کی جائے قرآن و حدیث سے؟ سمیر صاحب لے لو. اچھا یہ بات کریں گے ختم نبوت پر، ختم نبوت پہ بات کرنی ہے انہوں نے. ہاں یہ علمی لوگ ہیں نا، یہ صرف قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں اور ختم نبوت اور وفات عیسیٰ پر بات ہوگی ختم نبوت پر. میری بات سنیں، بات ہوگی ختم نبوت پر. ہم وہ پیش کریں گے، ہم وہ دلیل پیش کریں گے جو ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ لوگ وہ جواب سن تو لیں. انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، ہم نے اپنا عقیدہ بیان کرنا. انہوں نے اپنے عقیدے کی دلیل پیش کرنی ہے، ہم نے اپنے عقیدے کی دلیل پیش کرنی. انہوں نے اپنے عقیدے کی دلیل ہمارے مسلمات سے پیش کرنی ہے، ہم نے ان کے عقیدے کی اپنے عقیدے کی دلیل ان کے مسلمات سے پیش کرنی. یہ ہوتی ہے مخالفانہ گفتگو. یعنی ہم مانتے ہیں کہ نبی مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا عقیدہ قرآن مکمل کر لینے دو نا. اس کی بات جو بات تو پوری کر لینے دو. سمیر صاحب سن لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ میری کتابوں سے پروف کرے گا. عمر بھائی کی بات پوری نہیں ہوئی نا، وہ آنے لگ پڑا ہے. اور بولے عمر بھائی میرا عقیدہ یہ قرآن سے پروف کرے گا. جی ہاں قرآن سے بات ہے، کسی کی کتابیں نہیں ہے، قرآن سے تو کرے. اگر ہے ہمت ہے، اگر مولوی ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں یا علامہ صاحب ہے تو آ جائے قرآن سے بات کر لے، نو پرابلم. اگر قرآن سے ادھر ہلے گا میں چلے جاؤں گا، میں اپنا بزنس چلا رہا ہوں. سمیر بھائی جی یا اس کو بات کر لینے دو، میری بات میں نہ بولے، یا میری بات میں میوٹ کرتا ہوں، اس کو کہو بات کر لے. ختم نبوت پر بات کریں گے. آپ بات سن لیں بات کر دیا. ختم نبوت پر بات کریں گے. ہم اپنا عقیدہ پہلے عقیدہ بیان کریں گے، اس کی دلیل اس کے گھر سے پیش کریں گے، ہمارے مخالف کے گھر سے ہماری دلیل. سن لو، قرآن کریم سے سن تو لینا. قرآن کریم کو یہ مانتے نہیں ہیں، قرآن کریم کو نہیں مانتے کہ کس نے قرآن کریم کی سن لو قرآن کریم کی ہی دلیل ہوگی. یہی تو ڈرامہ ہے اس کا، دکھا تو سکتا نہیں ہے یار. بے وقوف دنیا کو بنایا ہوا ان فضوؤں نے پچھلے 150 سال سے یہ اہم ہی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. پر بھی بات نہیں کر سکتے. چپ کرو. کیا ہو جائے گی ان کو کہو کہ ختم نبوت پر بات کر لو. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی. ان کے بعد جو نیا مدعیان نبوت میں سے آیا کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں ان 1,24,000 یا جتنے بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے نبی پاک تک انبیاء ہیں ان میں میں داخل ہونا چاہتا ہوں، جو سلسلہ نبوت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے. یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے اندر لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ نے کہا چپ کر جائے یار. یار اس کو کہو یہ بولنے میں میوٹ کر لیں. صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اس کو میوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا بھائی سمیر 3 دفعہ میں نے بات کی، تینوں دفعہ یہ مرزائی بول پڑا ہے. اب میں میوٹ کرتا ہوں، جب تک آپ نے اس کی بات سن نہیں لینی، آپ نے مجھے آواز نہیں دینی، میں نہیں بولوں. اب ختم نبوت کو قرآن سے ان کے سامنے ثابت کر سکتے ہو یا نہیں؟ یہ بات تو کر سکتے ہو یا نہیں؟ کرو بھائی، بولو، جواب دو بھائی. کس سے پوچھ سمیر بھائی؟
नजीर भाई से पूछ रहा हूँ। देखें मेरी बात सुने, मैं साबित कर सकता हूँ कुरान करीम से, मना नहीं किसी को सकता, लेकिन कुरान करीम अरबी में है ना, सुन ले मेरी बात, अरबी में कुरान करीम की आयत लिखी हुई है। मनाओ मत, सिर्फ साबित करो, इनके सामने साबित करो, इनके सामने खत्म हाँ, नबूवत। मैं सुन ले ना, कुरान करीम की आयत पेश करूंगा, तर्जमा तशरीह तफसीर इनके घर से पेश करूंगा। नहीं, क्यों? उनके घर को तो आप मानते ही नहीं हो, उनके घर से क्यों पेश तो करोगे? ये मेरे घर को मानता है, ये मेरे घर, अच्छा मैं अपने घर से दे दूं, अपने घर से मैं पेश कर लूं, मान लेगा ये? मुश्तरका किताब है ना आपस में, कुरान तो आप मुश्तरका। सुने तो सही ना मेरी बात, तो सुन तो लेना, कौन सी मुश्तरका किताब है? आपके घर को मानता नहीं, लेकिन दलील आपके घर से दे, ये कौन सा भाई बात सुने समीर भाई, आपको इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि हमेशा मुखालिफ को उसके घर से दलील दी जाती है। जब आपके सामने कोई क्रिश्चियन आएगा, घर को मानते क्रिश्चियन, तो उनके घर से क्यों दलील दे भाई? मैं बताता हूँ क्यों। जब मैं बताता हूँ ना, मेरी बात सुन तो लेना। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बाइबल में से साबित करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत नहीं हुए और वो सूली पर चढ़ाए गए, लटकाए गए, लेकिन वो जिंदा उतार लिए गए, कहाँ से दलील पेश करता है? बाइबल से। क्या मिर्जा का, सुन तो लें, क्या मिर्जा कादियानी बाइबल को मानता है? नहीं मानता। वो कहता है ये मुहर्रफ और मुबद्दल किताब है, इसमें जरा भी खुदा का कलाम नहीं है, लेकिन दलील मैं मुखालिफ। जा रहा हूँ समीर साहब, देख लें ये लोगों में यार हिम्मत नहीं है। यार मैं इनकी बात सुन लो, मैं म्यूट करता हूं। मैंने हाँ कहा हाँ, मेरी म्यूट बात कर के लो, बीच में कर ले, बोलना शुरू हो कर ले, जाता है। म्यूट कर लो, शाबाश, गुड बॉय, म्यूट कर लो। हाँ लो। ठीक है? समीर साहब देखें, बात ये है, ये सारे ड्रामे हैं, और क्रिश्चियंस भी ये सेम चीज करते हैं, और यहूद भी ये सेम चीज करते हैं। कुरान अल्लाह ताला ने दिया है कि वो फैसला करेगा हक और बातिल का, पहली चीज, ठीक है ना। उसके बाद अल फुरकान है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि मेरी जो उम्मत ये यहूद की तरह बन जाएगी, वो पीठ के पीछे फेंक देंगे। अब खत्म नबूवत का इतना बड़ा अकीदा ड्रामा दुनिया के सामने, हाय हाय खत्म नबूवत सरतन से जुदा, लेकिन जब दलील की बात ये आ रही है तो पैंट गीली हो रही है इसकी, है पैंट गीली नहीं हो रही। फिर मिर्जा साहब की किताबों में, आपकी किताबों से दलील, फिर ड्रामा करेगा। एक चीज कहीं से उठा के, इधर से उठा के, उधर से उठा के, सारा झूठ जिस तरह यहूद करते। कुरान से दलील ये बंदा नहीं दे सकता, ठीक है ना। और इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो सूरा बंदर होंगे, ठीक है। ये कज़ाब मानते हैं ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जमाना आएगा मेरी उम्मत गुमराही में थोड़ी सी मतलब के प्रॉब्लम में आ जाएगी, अपनी उलमा पर जाएगी के पास, वो उनको सूर और बंदर मिलेंगे, क्योंकि ऐसे के लोग मिलेंगे जो कुरान से खींच के दूर लेके मिर्जा साहब की किताबों में झूठा साबित करने की कोशिश करें। अगर ये मर्द का बच्चा है और खत्म नबूवत का वाकई मुजाहिद है, जितना बड़ा ये बनाता है, चुप करके बैठ एक सेकंड और म्यूट रख अपना। अगर ये वाकई खत्म नबूवत का मुजाहिद है जिस तरह ये कहते हैं, तो आए मैदान में आज मर्द का बच्चा बनके कुरान से सिर्फ दलील दे खत्म नबूवत की, वरना इधर ये प्रूवन है ये बंदा कुरान से खत्म नबूवत प्रूव नहीं कर सकता और सिर्फ दजल कर रहा है। सिंपल दे दलील, मैं बैठा हूं इधर और मैं कोई मुरब्बी नहीं हूं, मैं एक अनपढ़ एक इडियट साहब, बस अपना काम चलाता हूं। लेकिन इतना हमें पता है कुरान हक और बातिल का फैसला करता है और हमारे पास दलील है, ठीक है। कुरान कहता है सच्चे हो तो दलील दो, दें दलील आज खत्म नबूवत की। चलें शाबाश, मैदान में उतर के कुरान से खत्म नबूवत को साबित करें इनके लिए। अगर मुझे इजाजत दोगे तो मैं करूंगा मुसलमान की हैसियत से, लेकिन ये क्योंकि ये आप लोगों से मुखातिब है तो जी नजीर भाई। अच्छा भाई, मैंने इसकी सारी बात सुनी है, मैंने माइक तो नहीं खोला। अब अगर मेरी बात के बीच में माइक खोलेगा तो आपने इसको नीचे उतारना, ठीक है ना, सूली तौर पर, ठीक है। पहले मैं इसकी उन लगव बातों का जवाब दूंगा जो इसने कही हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुम्मे बहतान लगाया है कि उन्होंने इनको बदतरीन मखलूक कहा है या बंदर और सूअर कहा है। हकीकत ये है कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने इन मिर्ज़ाइयों को खंजीर कहा है, और अनवारुल उलूम की 22वीं जिल्द है, उसमें लिखा हुआ है कि ये मिर्ज़ाई जो हैं ये खंजीर की तरह जाके मुखालिफ को पड़ जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो मुझे तार दें, क्योंकि इधर कुरान से बात नहीं हो रही, सूरत बंदर काम करने लग पड़ा है। मुझे तार दें, इसके साथ बकवास मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बच्चों को देख लेता हूँ, मैं अपने कुत्तों को देख, मैंने कुत्ते ठहर जाओ, मैंने ना कुत्ते पाले हुए हैं, ओए मैंने कुत्ते पाले हुए हैं, वो फिर भी नस्ली है, मैं उनको टाइम दे दूंगा।
ये बकवास इधर करने बैठे, कुरान से क्यों नहीं ये क्यों देखे? म्यूट किया टेंट की समीर होगी। भाई? जो बकवास ओए, किया मैंने मैं मैंने क्यों मर्दई दूंगा? नस्ल के कुत्ते पाले हुए हैं, चुप कर जा, तेरी बात में नहीं बोला ना कोई भी, चुप कर जा। पहले उस वक्त इसको पता नहीं था कुछ भी नहीं है तेरे को। खंजीर और बंदर, ठीक है, एक भी दलील नहीं दे सका ये इंसान। समीर साहब, समीर साहब 1000 पाउंड के लिए ये मर रहा है, हर तरफ कह रहा है मुझे नोट। अहमद ने कहा ये देखो देखो, खंजीर है, हर तरफ जाके कह रहा है मेनू नोट दिखाओ, मेरा मूड बनाओ, मेनू 1000 नोट दो, मेरा मूड बनाओ। मरजोटिया खत्म नबूवत पर ये कुछ नहीं कर सकता। और लत्ता ने मार बाप उत्तर चुप करके सुन ना होना। हाँ हाँ, जो मर्जी कह ले। आज समीर साहब आपके सामने है, समीर साहब ये खत्म नबूवत को नहीं प्रूव कर सके, और ये खत्म नबूवत को नहीं प्रूव कर सके। ये हाथ वो खंजीर इसके मुंह में दे दिया। हार्ट अटैक हो जाना है तेनू, बात है कि ये कह रहे कि नज़ीर भाई अगर आप कुरान करीम से ख़त्म नबूवत को साबित कर सकते हो तो ये मैदान में हाजिर है, इधर उधर की बातें मैं नहीं कहता कर। हूँ समीर भाई अगर ये सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की ही बात करता और उधर ही रहता, ये खंजीर बंदर वगैरह जैसी बकवास ना करता, मैं क्यों इसको ये जवाब देता? ठीक है, इसने पहले कहा है कि ये खंजीर और बंदर है। नहीं क्या आप यार कर समीर सकते? साहब आपका भी मेरा यार हक है कैसा ना? इंसाफ है यार, समीर साहब आपका ये इंसाफ नहीं है। इनको मौका दिया, इनको मौका दिया, 2 मौके दिए, कुरान पर नहीं आई समीर अब साहब। 2 मौके नहीं दिए, तू बीच में बोल पड़ते हैं, चुप कर जाना, बोलने देना। समीर साहब इन्हें म्यूट करें जरा, बात भाई? सुने। अब बात ये है कि खत्म नबूवत का जो है ना, खत्म नबूवत का जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो इनके उलमा कराम भी मान चुके हैं कि वो हो चुकी है। ठीक है, अगर नहीं आपको यकीन आता तो आपको हम सुना देते हैं। ये सुने जरा, ये क्या कहते हैं। जमात अहमदिया का मौका अपनाने पे जो है ना ये मजबूर है। अब ये सुने क्या कहते हैं। लो भाई सुने भाई, वीडियो प्ले करने लगे। की और हमारे आका मौला के आखिरी होने की वो क्या है कि वो आखिरी नबी। आप समीर साहब देखें इनको, हम इधर जिनका कोई भी, समीर साहब इधर कोई भी वीडियो सुनने के लिए नहीं है, हम इधर इनसे दलील लेने के लिए बैठे हैं। अगर मर्द के बच्चे हैं, अगर माँ के बच्चे हैं, अगर खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, दें और देवो। ओ खत्म नबूवत दे मुजाहिद किथे दलील दवो है? सारा दिन आप लगे रहते हो खत्म नबूवत। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नॉलेज भाई, मैं एक याद नहीं दे सके समीर साहब। अच्छा समीर भाई एक छोटा सा सवाल है आपसे। बड़ा शौक सी ना, मैं क्या पहला खंजीर बंदर ते चेक कर दिया। समीर भाई तू खत्मे नबूवत ते गल एक छोटा सा सवाल है आपसे। बंदर दा नाम ना लेंदा। अच्छा एक समीर भाई, अगर आपके पास कोई खबर लेके आता है तो आप उस शख्स की तस्दीक करते हो कि नहीं करते? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, क्यों नहीं करता। हाँ, अभी मेरा ये नॉलेज जो आपसे ये सवाल है कि जो मिर्जा साहब ने इनको खत्म नबूवत के ऊपर, जिनके ऊपर ये जोर दे रहे हैं कुरान से खत्म नबूवत साबित करो, मैंने उस शख्स की पहले तस्दीक करनी है कि पहले कुरान करीम की आयत की तस्दीक करनी है? नहीं, अगर कुरान से साबित होता है कि खत्म नबूवत को साबित की तो उनकी किताबों में जानने की नहीं। देखिए अस्मा रिजाल में आप भी देखोगे। समीर साहब पहले तो इन्होंने देखना मेरा अकीदा कुरान में है या नहीं है, पहले ये देखना है कि कुरान में अकीदा है या नहीं है। एक चीज मुझे कंफर्म कर ले। ये ना इनका एक्सेस, ये ना जब ये कोई दलील नहीं होती ना, नॉलेज भाई, मिर्जा साहब के पास जाना होता है। अल्लाह मुझे समझ नहीं जी जी वो दलील दे दो, एक दलील दे दो, भी लेते हो ना। ठीक है, नो कुरान से एक मेरी दलील दे बात दो। सुन ले, मेरी बात तो सुन लो यार। अब खुदा के नॉलेज भाई, पहले उस बंदे जी सबसे पहले तो कुरान करीम में हमारा, जब कुरान करीम से साबित, सबसे पहले क्या होगा? कुरान से साबित। यार समीर भैया मेरी बात, यार समीर भाई आमिर भाई मेरी गल, मेरी आवाज आई? 15 मिनट बिजी हूँ समीर साहब, मैं 10-15 मिनट बिजी हूँ, मुझे उतार के या आप ले लें उनको, ज़िया भाई को, देते जाए ना। दलील नहीं दे सका, देख ले सारी दुनिया, ये बच्चे को दलील नहीं दे सका खत्म नबूवत की। सारी दुनिया देख ले, ये आमिर जा रहा है, आमिर खंजीर भाग रहा है, सूरों के दलील नहीं दे सके हो, कोई दलील नहीं दे सके, दलील नहीं दे सके। मिर्जा कंदील दज्जाल कज़ाब, मिर्जा कादियानी कज़ाब साबित हो गए हैं।
ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ। खंजीर ਲਾਂਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ सारी ਗੱਲ करनी। दुनिया देख ले मिर्जा कि इनकी कादियानी दलील खंजीर खत्म नबूवत की दलील गाली है, खत्म नबूवत की दलील गाली देना मिर्जा है, खत्म खंजीर नबूवत की कजाब दलील दज्जाल, मिर्जा खंजीर कजाब दज्जाल। समीर भाई एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे के नहीं नहीं नहीं, ये समीर साहब आपने इसको बैठाया क्यों है, इस कुत्ते के बच्चे को, मुझे बताना इस सूर जरा। खंजीर के बच्चे को, जिस लो भाई बोलो लो भाई, और गालियां दिलवा लो समीर, और गालियां दिलवा लो। जो मिर्जा साहब को बैठ के गालियां लगा रहे समीर साहब आप इंसाफ नहीं कर रहे, वो बार बार सूर का बच्चा दलील नहीं दे समीर सकता साहब है। कुरान जीत के आपके सबको म्यूट करें। कादियानियों के साथ थे, समीर साहब आपको खुली छुट्टी दी हुई है, समीर देखें साहब सबको म्यूट करें। इनसे कुरान जीत की जितनी देर इन्होंने खंजीर कुत्ता वगैरह कहने पे लगा दी ना, एक कुरान जीत की आयत पेश कर दें। जज़ाकल्लाह, 70 बंदे सुन रहे हैं। ठीक है, ओके। नॉलेज भाई, आप उनको गाली मत दो, ठीक है? अगर गाली दोगे तो जाओ यहाँ से। वो भी मिर्जा साहब को गाली ना दे, वरना उनको भी उतारो। फिर इंसाफ का तकाजा रखो। मिर्जा साहब को मैं अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर ये मिर्जा साहब को करेगा मैं इसी माँ बाप को करूंगा फिर। और इसने फोर्स किया है रसूल अल्लाह के कॉल पर, अगर ये मेरे काबर पर करेगा और मैं इसके माँ बाप को गाल निकालूंगा, इसने अपने आप के माँ बाप को गाली निकाली है। ठीक है, पहले आप इंसाफ रखो, ठीक है, इसको भी गाली ना निकालने को। जब तक आप इनको गाली नहीं समीर साहब आप बताएं, पहले गाली किसने दी है? खंजीर किसने बोला? खंजीर और बंदर? आप टॉपिक को आप जो ना वो वापस लेके आए कुरान नहीं की यार, तरफ। सबर करो ना, सबर करो ना। नहीं, कुरान जीत की आयत ले। और यार सबर करो, कुरान मजीद है, तुसी एडे आशिक। समीर भाई आयत दे दी, आयत दे, आयत दे जी। किसने पहले आमिर गाली साहब दी आयत दे, है? आयत दे। समीर साहब जितना टाइम वेस्ट किया ना, कर दे यार। देखिए जितना टाइम वेस्ट किया ना, कुरान की आयत दे दी थी। एक मिनट, अमीन भाई। आयात दे दे, आयात दे दो, बस सिंपल, हम जहाँ चले जाएंगे। हम मिर्जा साहब को, हम भी मिर्जा साहब की किताबें चला देंगे। आयात दे दे, दलील दे दे, शाबाश। इतना तो बता दो, गाली हमने तो नहीं पहले दी समीर भाई? हाँ, नहीं, मैंने हदीस सुनाई थी आपको। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये नजीर साहब बोल रहे कि जब तक ये हमें गाली नहीं देंगे तब तक हम मिर्जा साहब को गाली नहीं देंगे, ये बोल रहे। ठीक है, तो आप उनको गाली मत दो, कुरान करीम पर आते हैं। ठीक है, उनको मेरी बात सुनो, उनको पहले किसी ने गाली निकाली, वो कसाब पर, लेकिन जब उन्होंने ये कहा फिर मैंने कहा ठीक है, सूर और बंदर बन गया। ठीक है ना, और ये सूर और बंदर का काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था। पहले इसने कहा है मिर्जा साहब जो भी आएगा कजाब है ये वो, तो मैंने हदीस सुना दी इनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये मिर्जा साहब को गालियां निकाल रहे। ये हमारा अकीदा है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक समीर साहब हमें इनका अकीदा ऐसे नहीं चाहिए। कुरान से दलील दो, कहानियां ना सुनाओ, कुरान से दलील दे दो यार। इसको चुप नहीं करवाना। समीर साहब दलील लो यार इससे। मिनट में इसको हल करता हूँ। देखो नजीर भाई, आपके पास टाइम है कुरान करीम से खत्म नबूवत के बारे में मुनाजरा करने के लिए इनके साथ है या नहीं आपके पास? अगर नहीं है नाइट राइडर भाई से करते हैं यार। मैं बात करने लगता हूँ, वो बीच में चीख चढ़ा डाल देता है, बात में कैसे समीर करूँ? नहीं, इधर उधर की सुन ही नहीं रहा वो। देखो वक्त जाया करने मैं के अपना बराबर। कीदा बयान कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ। मैं अपना कीदा बयान कर रहा हूँ। खत्मे नबूवत आमिर भाई बात कर रहे हैं, आमिर भाई की बात। समीर इनका टाइम लगाओ, मेरा जो खत्मे किसी के नबूवत टाइम का में बोलो अकीदा उसको नीचे सुन उतार लो। दो। आमिर भाई को मेरा बात खत्मे नबूवत का अकीदा, अगर किसी को बुरा लगता है तो इसमें मेरा क्या एतराज है? मेरा अकीदा ये है, अकीदा सारे जानते हैं। देखें 140 साल से यार कीदा यार, इसने चुप नहीं करना। हम जा रहे हैं, समीर साहब हम जा रहे हैं। अगर ये कुरान से दलील नहीं दे सकते, दो में बट अगर ये दलील नहीं दे सकते, हम जा रहे हैं। अकीदा सारे जानते हैं, आयत दें। अकीदा सारे जानते हैं। मैं पहले बयान करना है और दलील मैंने दावे पे देनी है कि वो बगैर सुनी दावे हुई के है, दलील देनी है। 50 दफा सुनी हुई है, आयत दे, आयत। और मैं पहले दावा पेश करना है। समीर साहब हमने टाइम तो दे दें आमिर भाई। पहले मैंने दावा पेश करना है, दलील देनी है। बयान करो, छोड़ो। मेरा दावा सुन लें कि नबूवत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गई। ये सिलसिला नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू आवाज कट होकर। गई, आवाज नहीं आ रही आपकी। किसकी आवाज कट गई? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, लो भाई, जिन्हें दिमाग दही शही खादा हुए तुसी गल करो। ठीक है ना, नजर आया जाओ, मेरी नमाज जा पैंट बदल के आ जा, शाबाश, पैंट बदल के अपनी जा। मिर्जे दी सुखन बदल सी, और जेड़े पखाने करदा मर गया सी ओदी सलवार बदल सी। दलील नहीं दे सके, गाना कट सकते हो, दलील नहीं दे सके, दलील नहीं दे सके। जिससे नबज बंद हो गई थी मिर्जे की, वो बदल लिया था।
आप समीर इनसे साहब बात दलील नहीं कर दे सकते सके। हैं या नहीं? नजीर कुरान भाई की आप आयत पेश करें, नमाज का डबल सवाब होगा। कुरान की आयत पेश करके जाए। जी चलो नजीर भाई भाई मैंने जब तक दावा नहीं पेश करना मैंने दलील नहीं देनी। पहले मैं दावा पेश करूंगा फिर दलील दूंगा। ये आपके 140 साल से सुनते हैं। आप दलील कुरान की दावे आयत पर में- होती है कि बगैर दावे की दलील कभी सुनी है वो आपने? सुना हुआ है ना, वो सुना हुआ है, दावा आपका सुना हुआ है। कुरान तो की दलील नहीं सुनी हमारी आज तक। अच्छा दलील डायरेक्ट नहीं जो है ना सुनी। कुरान की आयत पेश करें, डायरेक्ट कुरान की ये आयत आप पेश उनको बोलने दोगे तभी वो अपना दलील दे सकेंगे ना। दावा पेश करो, कुरान करीम से दलील दो भाई। जी नजीर भाई शुरू करें। अब मेरी बीच में आखिरी बार मैं बोलने लगा हूँ, मेरी बात में कोई बोला तो मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है? ठीक है, मेरा दावा सुन आपकी लें। इस मर्जी। दावे पर हम दलील देंगे। मेरा दावा यह है कि नबूवत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का अबी व अमी उन पर आकर ख़त्म हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। इस सिलसिले के अंदर ना कमी की जा सकती ना इजाफा। जो बंदा इस सिलसिले में दाखिल होने की कोशिश करेगा, नबूवत का दावा करके इस सिलसिले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, वो कज्जाब है, वो दज्जाल है। ये मेरा अकीदा है, ठीक है, ये मेरा अकीदा है। ठीक लो है। भाई ये अस्तगफिरुल्लाह, ये यार नहीं चुप करते। मैं जा रहा हूं समीर, ये आपसे चुप ही नहीं, आपके मेहमान करते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये मेरा आपने अकीदा पेश है, किया, ये अकीदा ये आपको मेरा अकीदा है कि जो इस सिलसिला नबूवत में दाखिल होने की कोशिश करे या इसमें से किसी नबी को निकालने की कोशिश करे, ठीक है, वो दज्जाल है, कुरान वो करीम से कज्जाब है, वो झूठा है। यार ये बोली जा रहे यही अकीदा अपना, यही अकीदा कुरान करीम से साबित कर सकते हैं या नहीं भाई? हाँ मैं कुरान करीम से साबित करूंगा। लेकिन ये इन्होंने दावा नहीं सुनना। वो किधर गया बंदा जिसके साथ बात हो रही थी? नहीं वो वो नीचे जो कह रहा था तेरी पैंट गीली होगी, उसकी अपनी पैंट गीली होगी। पर आएंगे। अच्छा ठीक है, इनसे बात करवानी। ये नाइट राइडर साहब आ गए, इनकी मीन साहब से बात करें। मैं जरा बिजी 5-10 मिनट में मैं आता हूँ, इंशाल्लाह सुनता हूँ। चलो ठीक वो है। चला गया साहब, मेरा इन्होंने मतलब ना इन्होंने देखें अपने ही अकीदे की जो है ना, इन्होंने जो गुस्ताखी है हजरत ईसा अलैहि सलाम की है, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहि सलाम ने इस उम्मत में आना है। तो इन्होंने कहा है कि जो इस आएगा इस सिलसिले में शामिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इनके जो अकीदे इस के सिलसिले मुताबिक में दाखिल होगा, हाँ जी, ईसा दाखिल अलैहिस्सलाम इस होगा। सिलसिले में दाखिल है पहले से या अब आके उन्होंने इस सिलसिले में दाखिल होना है? अच्छा, बनी इसराइल के वो नबी है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बनी आपके इसराइल अकीदे के हों या मुताबिक बनी नहीं दाखिल इस्माइल के होंगे। हों, जो नबी इन्होंने इस सिलसिला हजरत ईसा नबूवत अलैहि सलाम की में गुस्ताखी पहले की से, है। मेरी सुन लो ना, तमाम मुसलमान हजरत सुन आदम रहे हैं, से- जो ईसा अलैहि यार ये सलाम चुप को ही आने नहीं का करते। अकीदा रखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। आमिर नजीर साहब ने ईसा अलैहि सलाम को इस सिलसिले में दाखिल जब करना है, ओ भाई, वो इस ये सिलसिले में दाखिल में अल्लाह होंगे। ताला ने तो दाखिल इन्होंने किया। उन्हें कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में पहले से दाखिल किया हुआ है। आमिर नजीर जो साहब ने दाखिल अब होने की कोशिश करेगा वो आमिर कज़ाब नजीर और दज्जाल साहब ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, क्योंकि तमाम मुसलमानों का अकीदा ठीक है ये ठीक है ठीक है, तो हाँ नजर जी। से गुस्ताखी होगी है, जो बदतर क्योंकि मुसल- मैं एक झूठे में दइए जो नबी बनूं, साहब दज्जाल कह देता, कहता है, कज़ाब कह बदतर देता। फिर तो नजर बहुत ज्यादा कर रहे हैं गुस्ताखी ईसा अलैहि सलाम के। वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम मैं आएंगे मुसलमान कज़ाब से और लेकर वो मुसलमान दाखिल हो कज़ाब से जाएंगे। लेकर आज तक वो उम्मत जितने मोहम्मदिया में मुझे दाखिल का हो इल्जाम गए हैं। समीर लगा रहा है ये इन सब को मैं कज़ाब और दज्जाल वो- मानता हूं। समीर अच्छा, साहब अभी देखिए, बात- कुरान कहता है कि मुसलमान नबूवत कज़ाब से जारी है। लेकर- एक मिनट भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं है नजीर भाई तो आप चले जाइए। नाइट राइडर भाई इनसे बात करेंगे खत्म नबूवत को कुरान करीम से। ठीक है, हाँ, लेकिन आप तो ये कर मेरी नहीं बात सकते। सुने, आप तो मैं कर नहीं करने लगा हूं, सकते। मेरी बात सिर्फ सुनो बहु- समीर भाई, ये सिर्फ- समीर भाई ये सुन सिर्फ लो। बोल सकते ये थे, अगर इन्होंने कुरान से कोई अगर दलील इन्होंने नहीं ईसा दी। अलैहि समीर सलाम भाई, का नाम लेकर कोई बकवास की ना, मेरी हेलो, बात सुनना समीर जब साहब, माइक समीर खोल के साहब, मंजी इन्होंने ठोकनी चाहिए। ईसा एक अलैहि सलाम का दलील नाम नहीं लेकर कोई मर्ज़ाई हाँ, गुस्ताखी मंजी- करेगा। मैं बैठा हाँ मैं उत्थे मिर्जा टंगांगा जिथे ओ मंजिया ठोको ताका देखिए, काम ईसा ही अलैहि सलाम की कुरान तो गुस्ताखी की दलील है। ना दियो। आमिर नजीर ने जो है ना ईसा अलैहि सलाम की गुस्ताखी की है, तमाम मुसलमान सुन लें। अच्छा समीर साहब, इनको क्या फर्क पड़ता है? और इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो कुरान से दलील नहीं देते। नॉलेज भाई एक मिनट, नॉलेज भाई चलो एक मिनट ठहरे। ये नाइट अच्छा, राइडर एक मिनट, समीर भाई मेरी बात सुने, समीर भाई मेरी बात जाहिल सुने। इंसान, दुनिया का जाहिल इंसान था। एक मिनट यार, इसको नॉलेज कोई साहब एक अक्ल मिनट ठहरे नहीं है। जरा, एक मिनट ठहरे। समीर साहब मेरे साथ मेरी बात सुने। इंसान कब्र में जा रहा है, सुन और नॉलेज साहब एक मिनट ठहरे जरा, लोग गालियां दे रहे एक हैं मिनट फिर ठहरे। ना अच्छा कहना समीर साहब मेरी बात ब्रॉड सुने। खराब हुई है। अब आमिर साहब की आपने मीर बात साहब सुनी, अगर उन्होंने कहा ये कि तरीके जो- से बात करते हैं तो बात आगे लेकर चलते अच्छा हैं। एक मिनट नाइट तरीके से डॉक्टर साहब, बात एक मिनट ठहरे, मुझे ना हॉर्स से बात करने दें। साहब आए हैं, इनसे तरीके से बात करते हैं, जी ठीक है? पहले समीर भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यार मेरी बात- समीर आप बात करवा सकते हैं या नहीं? समीर भाई एक मिनट ठहरे जरा, मेरी बात सुने पहले। नहीं करवा देखें सकते। ये तो यार टाइम लगाओ ना, इनका टाइम लगाओ और यार, जो एक अपने मिनट टाइम ना, के समीर बाद साहब, आप बोले मेरी बात उसी के सुनेंगे? बाद- अपना बात कर ले, फिर टाइमिंग के हिसाब से जी, चलते समीर दोनों। साहब मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी करे, जी, जल्दी करे। अच्छा देखें,
जो 72 फिरके हैं मुसलमानों के, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उम्मत मोहम्मदिया में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, वो जो भी है अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। देखिए वो कहते हैं ना, आमर नजीर साहब ने क्या कहा है अभी, उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जो भी शामिल होगा वो नाउज़ुबिल्लाह कज़ाब और क्या होगा, दजाल होगा। तो ये किस पे अटैक फिर भाई अभी मैं इसके ऊपर जवाब देना चाहूंगा अगर इजाजत दें। यार देखो ऐसा नहीं होता ना, वो बात करे फिर वो बात करे। देखो अभी हम मुनाजिरे के मूड में थे, अभी हम मुनाजिरा करना चाहते हैं। ये फिर भाई एक झूठ बांधा गया है, एक झूठ बांधा गया, कैसे आप ब्रॉड मैनेज कर रहे हैं? एक झूठ बांध रहा है ये बंदा, बिल्कुल सुरीन झूठ बोल रहा है उस बंदे की तरह। ये और जो सा झूठ आमर नजीर बांध के गया है कि खत्म नबूवत कुरान में और बिना दिखाए बात मैनेज कर लो, प्लीज मैनेज कर लो, प्लीज मैनेज कर। मैनेज करो, तू चुप करो। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो ये टाइम शुरू हो गया। ये पहला मौका कौन लेगा, नाइट राइडर भाई या नॉलेज भाई? चलो नाइट राइडर भाई को दो। पहले मेरा जवाब दे दे, 2 मिनट मुझे दे दो। करो भाई करो, जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट। नाइट राइडर भाई, आमिर भाई ने कहा है नजफी एंड तक बात करें, नजफी बात रुक जाना, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तूने जो झूठ बोला है मैं उसके ऊपर रिबर्टल दे रहा हूँ। आप फिर खाना खा लें, फिर यहाँ नमाज का टाइम हो जाएगा आपका। यार ये बंदा क्या है यार, वल्लाह नजीम आप लोगों की ना, जब खाना तैयार होता है ना नमाज भी छोड़ते हैं। अभी आप खाना खाए फिर आ जाना वापस। शाबाश, मेरी बात गुड बॉय, शाबाश, झूठ बोला, शाबाश शाबाश शाबाश, रसूलुल्लाह की बात यार सुनो, ये खाना खाओ, शाबाश। ये समीर इसको रोक लो यार, 2 मिनट में बात तो करना चाहिए। सबर और जवाब दे रहा है, फिर ना कहना। इन्होंने कहा है जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने गुस्ताखी की है। हाल बत्ता मिर्जा साहब ने जो गुस्ताखियां की है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आमिर भाई ने एक बात की है कि जो सिलसिला नबूवत का सिलसिले के बारे में बात सुन ले अब चुप करके। जो सिलसिला नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद कोई भी, चाहे वो असवद हमसी हो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, मुसलमा कज़ाब हो, ठीक है, कोई भी हो, वो सारे कज़ाब और दज्जाल है। उन्होंने ये और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होगी उस जमाने को। ये समीर भाई, ये समीर साहब, ये नजफ तो समीर वैसे साहब भी जाए इंसान है, ये ठीक है ना। बंदर और सुअर का आमर नजीर दलील नहीं दे सका, आमर नजीर दलील नहीं दे सका। खत्म नबूवत नजफ चुक लो दे जिन्ने मर्जी चुक ले, और दलील नहीं दे सके खत्म नबूवत। बंदर और सुअर क्यों, क्या वजह है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदर। यार इस तरह नहीं होता ना, चुप करे अभी टाइम। बशीरुद्दीन ने भी खंजीर कहा है आप लोगों को, बशीरुद्दीन ने। ये भाई एक्सपैंड कैसे होता है इसको? मैं अगर ऊपर लो, ये नॉलेज भाई को ऊपर लो तो कैसे होता है ये? 1 मिनट ना, स्क्रीन पे क्लिक करें और एक डब्बा सा बना होगा उस पर एक्सपेंड कर दो। हाँ, अभी पता चल जाएगा। अलबत्ता ये भी नाइट राइडर भाई, अगर हो सके तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की कादियानी की ना तहरीरात भी इनके सामने रख दीजिएगा कुरान के साथ। सो प्लीज, साहब की 140 साल से है कुरान मजीद के एक आयत बिल्कुल उनमें तजादात हैं, बहुत सारे तजादात एक आयत पेश कर दो। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जो आपने अकीदा बनाया ना, एक ईसा अलैहिस्सलाम को 140 साल से मिर्जा साहब ने फरमाया कि कोई भी इब्ने मरियम को आसमान से उतरता नहीं देखेगा। अच्छा सुमेर, ऐसा करो सबको नीचे उतार दो, सिर्फ 2 बंदे ऊपर बैठो, सबको नीचे उतार के 2 बंदे। एक मिनट। जो मिर्जा साहब ने खुद अपना हमल एक बयान किया, जिस तरह वो मसीह इब्ने मरियम बने, वो कहाँ से दिया गया? हाँ जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे बात करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, निकाले अरफान किताब निकाले। हाँ जी, किताब इरफान मैंने देखी है। वहाँ पे जो हमले वही का जिक्र किया है। करना चाहें बात तो पहले से मौजूद है। हाँ जी, हमले वही का जो जिक्र किया है अरफान किताब में, आपके ही जो मौलवी कारी नूर मोहम्मद फकीरी साहब जो हैं उन्होंने, तो वो भी हम बयान कर देते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, लगा लेते हैं। सफा लगा, हाँ जी, लगा लेते हैं, लगा देते हैं। अच्छा, अबू बकर मीर भाई, मैं किताब इरफान में आप पढ़ी, अपने इस अकीदे से तौबा करेंगे? आपको मैं हवाला लगा दूं। मैं अगर वो कुरान के बिल्कुल मुखालिफ हो तो बिल्कुल उसको इनकार करेंगे। हाँ जी, जो हमले वही का किया ना, और जो बदजुबानी करती हैं, सबसे पहले तो कुरान मजीद की आयत है ना कि कोई नबी ऐसा नहीं, कोई भी नबी ऐसा नहीं जिसके साथ तमस्सुल नहीं किया गया। नजफ अब्बास ये टाइम जाया करेंगे और इसी तरह ये हवाला लो, हवाला लो, हवाले से बात करो कि नाइट राइडर भाई की बात करवा दो। हवाला ले, हवाला ठीक होगा, हवाले से बात करते हैं। बाकी सबको सुमेर कहाँ पे हो यार? सुमेर कहाँ? सबको म्यूट करो। चलो अच्छा, नाइट राइडर भाई और नॉलेज भाई की मुनाजरा है, ठीक है, चलो
शुरू करते हैं। तो पहला किसको टाइम